So here spherical mirrors, we will discuss about spherical mirror. Actually we have two types of mirrors, that is convex mirror and concave mirror we have to study. So we have to study about concave mirror and convex mirror, and these are known as spherical mirrors. So why they are known as spherical mirrors, we will study about that. Okay, so actually they are known as spherical mirror because they are being prepared from a sphere. So if we have a hollow sphere, transparent hollow sphere of glass, or a metallic sheet reflecting, smooth metallic reflecting sheet, then if we are going to cut them, and the part of that from where the reflection will takes place is known as spherical mirror. So they are known as spherical mirror because these two are being prepared from a hollow sphere. So how they are prepared? So first of all, let us see about spherical mirror. So spherical mirror are obtained by taking a part of hollow sphere of glass or any polished metal. So if we have any polished metal in shape of hollow sphere or a glass which is being polished, okay, from where reflection can takes place, and we are going to cut that hollow sphere, and the part of that will, that means reflecting surface which is being cut out from that hollow sphere, will be termed as spherical mirror. तो उनको हम क्या बोलेंगे? spherical mirror बोलेंगे. So spherical mirror will be of two types. So let us see why they are known as concave or convex mirror. Why we have give them the name. So यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास, अगर देखें ये अगर हम कट किए, if we have cut it, we will have two part. One is curved outward surface, okay, and another will be curved inward, okay. This is center C. Center is represented by C. In mathematics you have represented center by O, but here in case of this we will represent the center as C. That will be known as center of curvature. We will discuss it later. So here we have two part, two surface. One is the inner surface and one is the outer surface. So outer surface is curved outward and the inner surface is curved inward. So this outer surface which has been curved out is known as convex surface. And this surface which is being curved inward is known as convex surface. Okay, and the name of the mirror is given according to the surface on which reflection of light takes place in case of spherical mirror. So in case of spherical mirror का नाम हम कैसे देंगे? किस surface से reflection हो रहा है. अगर convex surface से reflection होगा तो उसका हम नाम क्या देंगे? convex mirror देंगे. concave surface से reflection होगा तो उसका नाम हम क्या देंगे? that is concave mirror. Okay, let us see one by one. convex और concave को हम समझते हैं कैसे होगा, कैसे उसका नाम देंगे. तो यहाँ पे मैं इरेज करने जा रहा हूं. Now we will see here that suppose we have the part like this. Okay, this was the part of a sphere. Here see. So what I am going to do, I am going to polish its inner surface. Then the reflection of light will take from the outer surface, that is convex surface. So if the reflection of light will takes place through this convex surface, that's why this mirror will be known as convex mirror. So we can say, that means how can we define convex mirror? So spherical mirror in which the reflection of light takes place through the convex surface is known as convex mirror. तो जिसमें convex surface से हमारा reflection होगा उसको हम क्या बोलेंगे? convex mirror बोलेंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? convex mirror. Why we are saying it as mirror? Because the surface has been polished and reflection of light is taking place through this surface. That's why it is a mirror. And since the reflection of light taking place through the convex surface, that's why it is known as convex mirror. वैसे ही plane mirror में क्या होता है? आपका plane surface से reflection होता है. That's why the name is given to that plane mirror. Okay? उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा convex हो गया. Concave mirror का एग्जांपल देख लेते हैं. तो concave mirror में क्या होगा? We will see that. Suppose we have the mirror.
So here is the mirror, this is the center. So if we are going to polish the outer surface, देखिए पॉलिशिंग रिक्वायर्ड है, पॉलिश अगर नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे तो आपका आधा मार्क्स कट सकता है. सो एवरी टाइम यू शुड शो द पॉलिशिंग, तभी हमारा पता चलेगा कि ये मिरर है और उससे रिफ्लेक्शन होगा. सो हमने कन्वेक्स सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो अब रिफ्लेक्शन किधर होगा? रिफ्लेक्शन विल टेक्स थ्रू द कनकेव सरफेस. दैट्स व्हाई दिस मिरर इज नोन एज concave mirror. Okay, so we will say it as concave mirror. Now we are going to discuss some that means some terms related to this spherical mirrors, like center of curvature, aperture, radius of curvature. So these terms we will discuss one by one. What are, because their definition has been asked in board में 1 नंबर के क्वेश्चन में इनका डेफिनेशन पूछा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फोकस, सो डिफाइन प्रिंसिपल फोकस. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. सो हियर आर द टर्म्स. एपर्चर, अभी देखेंगे हमारे पास क्या होगा, एपर्चर होगा. मैं अभी फिगर से पहले हम टर्म्स को देख लेते हैं. एपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस. नाउ लेट अस सी इन द फिगर. Here I have made concave mirror. So in concave mirror, this is aperture. Mn is aperture. That is the effective width. Effective width of the spherical mirror through which reflection of light takes place. यानी कि अगर हमने ऐसे कट किया है, पूरा हमारा स्फीयर था और उसको हमने कट किया, aperture. So aperture is effective width. So we have cut the spherical mirror. आपको लग रहा होगा कि spherical mirror ऐसे ही केवल होगा, लेकिन spherical mirror भी क्या होता है, सर्किल होता है. सपोज करिए आपके पास एक बॉल है, ऐसे एक बॉल है, और उसको अगर आप कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे इनवर्ड एक सर्किल, ऐसे सामने से सर्किल जैसा मिलेगा, और उसमें अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा और इधर की तरफ उभरा हुआ रहेगा. ठीक है, तो अब इसको अगर हम क्या किए, पीछे का पॉलिश कर दिए, तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा. सो दिस इज सर्कुलर. जो आपका मिरर होगा वो सर्कुलर होगा. स्फेयर से कट करने के बाद सामने से देखेंगे तो ऐसे सर्कुलर रहेगा, जिसमें अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा. ओके, सो इस तरीके का रहेगा, और उसको जो है सामने से हम देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, सामने से बोल रहा है, दैट इज साइड व्यू. सो वी आर वाचिंग द साइड व्यू, आर मेकिंग साइड व्यू हियर. तो यहाँ पे जो बना हुआ है ये आपका उसका साइड व्यू है. तो इसका यहाँ पे अब कोई सर्किल होता है तो उसका क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, दैट इज डायमीटर. तो विड्थ क्या होगा, उसका डायमीटर होगा सर्कुलर पार्ट का, नॉट द स्फेयर. स्फेयर की रेडियस अलग होगी. अब उसको हम कितना कट कर रहे हैं, यहां से कट करेंगे तो छोटा हमारा जो है सर्किल बनेगा, बड़ा कट करेंगे तो बड़ा सर्किल बनेगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट मींस हमारा मिरर होगा और उसका विड्थ होगा, हम कितना कट करते हैं और उसकी पॉलिशिंग करते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एपर्चर इज द इफेक्टिव विड्थ, दैट इज mn. mn is known as aperture because this is the polished surface through which reflection of light takes place. So width of, effective width of the spherical mirror through which reflection of light takes place. तो ये क्या हो गया, एपर्चर क्या हो गया आपका, इफेक्टिव width of spherical mirror through which reflection of light takes place. Okay, so effective width of the spherical mirror through which reflection of light takes place is known as aperture. तो यहाँ पे aperture आपका क्या है, mn है. उसके बाद आते हैं पोल के बारे में. पोल के बारे में जानते हैं, पोल क्या होता है. तो पोल, ये जो हमारा एपर्चर है उसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द एपर्चर, और वी कैन से दैट सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. तो यानी कि ये क्या है, सेंटर ऑफ क्या है हमारे पास, दैट इज स्फेरिकल मिरर.
ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा थ्रू विच रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज पोल। तो इसका जो हमारा मिड पॉइंट होगा या उसका जो सेंटर होगा, यानी मैंने बताया था सामने से देखेंगे सर्कुलर दिखेगा, तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। सो पोल इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिक सेंटर। जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है दैट इज नोन एज द पोल। तो हम बोल सकते हैं पोल इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है। उसके बाद अगला टर्म है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी है। ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है, जिस स्फेयर से मिरर को बनाया गया है, मिरर को कट किया गया है, उस स्फेयर का जो सेंटर है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सो वी कैन डिफाइन इट एज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है। क्या होगा हमारा, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, the center of sphere of which the mirror is a part is known as center of curvature। तो center of curvature क्या होगा, ये आपका सेंटर होगा किसका, स्फेयर का, जिस स्फेयर से कट करके हमारा मिरर को बनाया गया है, स्फेरिकल मिरर को बनाया गया है। सो आई थिंक यू कैन राइट द डेफिनेशन, नो नीड टू राइट इट हियर। सो एक्चुअली वी कैन अगेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। So center of curvature is the center of hollow sphere of which mirror is a part is known as center of curvature। अब आगे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, आप पोल बोल सकते हैं या कोई पॉइंट ले सकते हैं, इस मिरर का कोई पॉइंट ले लीजिए, उसके और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ, तो ये रेडियस क्या है, ये रेडियस क्या है, इस हॉलो स्फीयर का ही है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। दिख नहीं रहा होगा, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिंपली आप बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। अगला देखते हैं हमारे पास है, वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस एज यू नो अबाउट एक्सिस, एक्सिस क्या होते हैं, दैट इज अ लाइन, एक तरह का लाइन होता है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पढ़े हुए हैं, बट हियर in physics we are studying about reflection, so there will be a line which will be passing from certain fixed point। तो यहाँ पे कोई दो फिक्स पॉइंट चाहिए जिससे हमारा वो लाइन पास करे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा दैट इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होगा आपका, लाइन विच पासेस थ्रू लाइन और एक्सिस which passes through pole and center of curvature। एक्चुअली आप लोग हो सकता है कर्वेचर की वजह से कंफ्यूज करें, दिस कर्व सरफेस के वजह से हम लोग बार बार कर्वेचर यूज कर रहे हैं। तो कर्वेचर एक तरीके से मिरर के लिए यूज हो रहा है। सो हियर पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ये जो कर्वेचर है यानी कर्व है उसका जो सेंटर है और पोल से पास होने वाला जो हमारा एक्सिस है या लाइन है दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए हमने दिखाया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है, आगे आते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ा इरेज करूंगा बिकॉज प्रिंसिपल फोकस जो होता है, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है प्रिंसिपल फोकस पूछ सकता है या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अगर केवल प्रिंसिपल फोकस पूछा तो उसमें हमें प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स उन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या होता है वो समझाता हूं अभी आपको। ठीक है, फिगर बना लेता हूं उसके बाद समझाता हूं। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट विल बी द फोकस, मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता दूं कि अगर कोई लाइट रेज है, यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और ये हमारा कनकेव मिरर है। सपोज करिए हमारे पास, सबसे पहले मैं कनकेव को एक्सप्लेन करता हूँ फिर कन्वेक्स पे आता हूँ।
तो अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। सो द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, रिफ्लेक्शन के बाद। अब देखिए ये हमने पॉलिश कर दिया है, तो ऑब्वियस है कि लाइट यहाँ पे आएगा, स्ट्राइक होकर फिर वापस से मीडियम में चला जाएगा। लाइट विल स्ट्राइक ऑन द मिरर एंड रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रे आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद दे विल पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये सारे के सारे द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी से सारे के सारे पास होंगे एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, लेकिन किसका, कनकेव मिरर का। सो कनकेव मिरर का अगर डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर the rays which are parallel to the principal axis after reflection intersect each other, ठीक है, या meet each other। तो क्या होंगे, the rays which are parallel to the principal axis after reflection meet at a point on the principal axis, that point is known as principal focus of concave mirror। अब इसमें देखते हैं क्या होता है कन्वेक्स में। कन्वेक्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है ये रिफ्लेक्ट, दैट इज दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज द पॉलिश सरफेस। तो अब लाइट रेज के अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जब लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये जब जाते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस से मीडियम में आ रहे हैं। तो ये लाइट जो है इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये लाइट जो आया था इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये लाइट हुआ इधर रिफ्लेक्ट हुआ। इनको जो है डाइवर्जिंग रे भी बोला जाता है, इनको कन्वर्जिंग, बिकॉज इसमें अगर कोई रे आ रहा है पैरेलल तो वो सारे के सारे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज, तो क्या होता है इसमें रेज जो होते हैं डाइवर्ज होते हैं, मतलब दूर भागते हैं। यहाँ देखिए पैरेलल थे तो ये क्या हुआ, इधर भागा, ये इधर भागा, ये इधर चला आया रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन अगर सबको जो रिफ्लेक्टेड है उनको पीछे की तरफ ले जाया जाए, उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो हमें लगेगा दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम, सॉरी मैंने सेंटर कर दिया है, सेंटर यहां पे है इसका, ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहां पे हमारा एक पॉइंट होगा F, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो अगर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, यहां पे जो रिफ्लेक्टेड है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, यहां पे जो रिफ्लेक्टेड है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, वी विल सी दैट दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम, ये रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, लगेगा कि ये इसी पॉइंट से आ रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस पे। तो अब इसका हम कैसे डिफाइन करेंगे कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर का हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the light which are parallel to the principal axis after reflection appears to come from, the rays which are parallel to the principal axis after reflection appears to come from a point on the principal axis is known as principal focus of convex mirror। ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू कम। वो क्या होता है, लगता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन हम जब अपने आंखों से देखेंगे तो लगेगा कि इसको पीछे ले जा रहे हैं, तो इसी पॉइंट से हमारा जो है सारे के सारे रे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगेगा कि यहीं से रे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल think that here is a point from where the light rays which are parallel to the principal axis after reflection appears to come from this point, and this point on principal axis is known as principal focus, ठीक है। तो इसको कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, and this is known as converging, okay, that is known as converging mirror। तो
तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब हमसे केवल अगर प्रिंसिपल फोकस पूछ दिया तो हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे तो कन्वेक्स और कनकेव के केस में ठीक है, कन्वेक्स के केस में आप क्या बोलेंगे, द लाइट रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to come from a point on the principal focus is point on the principal axis is known as principal focus. इसमें क्या बोल देंगे, that is the rays which are parallel to the principal axis after reflection meets at a point on the principal axis and that point is known as principal focus. लेकिन अगर यही केवल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, अगर यही पूछ दिया केवल प्रिंसिपल फोकस, तो हमें क्या बोलना होगा, दोनों को कंबाइन करना होगा। सो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट on which the rays parallel to the principal axis after reflection meets in case of, ब्रैकेट में लिख देंगे, in case of concave mirror appears to come, in ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, for convex mirror is known as principal focus of spherical mirror, तो उसको हम बोलेंगे principal focus of स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों पॉइंट को कंबाइन करके उसका डेफिनेशन बताना होगा। गॉट इट स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी पॉइंट इससे रिलेटेड। सो ये नेक्स्ट फोकल लेंथ। तो अब देखते हैं हमारे पास फोकल लेंथ क्या होता है। सो फोकल लेंथ एक्चुअली दिस इज द लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। सो लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पी। तो अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव हो और कन्वेक्स, फॉर बोथ जो हमारा फोकल लेंथ होगा दैट विल बी द लेंथ बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है दैट इज रियल इमेज। कब हमारा इमेज बोला जाएगा रियल है और कब बोला जाएगा वर्चुअल है। ठीक है, सो रियल इमेज हम कब बोलेंगे, तो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन होने का मतलब, सपोज करिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको मिरर के उसके सामने हमने मिरर रखा हुआ है। अब वो मिरर में इमेज बनेगा, तो इमेज क्या हो सकता है, इमेज जो बने मिरर के अंदर बने, या दूसरा हो सकता है कि इमेज बाहर बने, यानी रिफ्लेक्ट होकर लाइट है और रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो बाहर ही इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो वहां पे क्या होगा, इमेज बनेगा। और जब हमारा इमेज बाहर बनेगा, मिरर के बाहर बनेगा, तो वहां पे अगर हम स्क्रीन लगाएंगे, कोई व्हाइट स्क्रीन लगा सकते हैं या कुछ भी, जैसे पेज या कुछ भी लगा सकते हैं, तो उस पे क्या होगा, उसका इमेज, यानी मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ पे मैंने मिरर रखा है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये ऑब्जेक्ट आया, इधर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगा और पता चला कि इसका इमेज यहाँ पे मैंने एक पेज लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज इसी पेज पे हमें दिखने लग रहा है। ऑब्जेक्ट इधर है और उसका यहाँ पे इमेज दिखने लग रहा है, सोचिए, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। तो उस इमेज को हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे, यानी कोई पेज है या कुछ भी है, दैट इज नोन एज स्क्रीन। सो दैट इमेज इज बीइंग ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, तो उसी को हम बोलेंगे इमेज जो है हमारा क्या होगा, रियल होगा, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, यानी वो मिरर के अंदर नहीं बन रहा है, मिरर के बाहर बन रहा है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू टेक दैट इमेज ऑन अ स्क्रीन, तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होगा, फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, फॉर्म्ड inside the mirror and we cannot be taken on screen, यानी कि ये जो इमेज होंगे ये मिरर के अंदर बनेंगे, उसके सामने हम स्क्रीन लगाए या कुछ भी लगाए, उस पे हमारा उसका इमेज नहीं बनेगा। सो द इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर एंड द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, सो दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज। उसको देखेंगे हम वर्चुअल इमेज। अभी हम लाइट को जो है जब रे डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कब वर्चुअल इमेज बन रहा है और कब हमारा रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म थे।
अब हमारा स्मॉल एपर्चर के लिए एक रिलेशन होता है, अगर हमारे पास ये जो एपर्चर है काफी स्मॉल हो तो उस केस में क्या होता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। तो आपको उसका प्रूफ नहीं जानना है, आपको बस जान जाना है कि हमारा क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारा क्या है अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वो रिलेशन देखते हैं, यहां पे आपका फोकल लेंथ क्या होगा, दैट इज पी एफ जो है हमारा, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फिजिक्स चैप्टर में, हम फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे पास जो सीपी है या पीसी जो बोल दिया जाए, तो पीसी क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैं कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो फॉर स्मॉल एपर्चर, अगर एपर्चर हमारा काफी स्मॉल हो और रे ऑफ लाइट इज पासिंग वेरी मच क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन वी हैव दिस रिलेशन दैट इज रेडियस विल बी डबल ऑफ द फोकल लेंथ। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो 2 टाइम्स होगा फोकल लेंथ। यानी आपका जो पीसी होगा दैट विल बी 2 टाइम्स पी एफ। तो उसी को हम लिख देंगे आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, या आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो आप फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस। तो सपोज करिए रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा एंड दैट बिकम्स 10। तो इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है 2-3 बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, कि फोकल लेंथ दे दिया है, फोकल लेंथ दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ दिया है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है और फोकल लेंथ पूछ दिया है। या न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम आगे बनेंगे उसमें भी क्या करता है कि आपका पता चलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया रहेगा और आपको जो है फोकल लेंथ की जरूरत होती है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो आपको ये रिलेशन पता रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगला वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दैट विल बी ऑन रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।